اللہ کی حدوں کو توڑنے سے پہلی امتیں تباہ ہوئی ہے۔ بات سمجھ آئی نا؟ یہ امت کب تباہ ہوگی؟ جب اللہ کی حدوں کو توڑ ڈالے گی، جب انصاف نہیں رہے گا، ظلم ہی ظلم ہوگا، اس وقت قومیں تباہ ہو جائیں گی۔ آج دیکھو مسلمان ذلت اور پستی کا شکار کیوں ہیں؟ کیوں ہے؟ کہیں انصاف تمہیں دور دور سے بھی نظر آتا ہے؟ جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا قانون نہیں چل رہا؟ کہیں مالدار کے بچے نے کوئی جرم کیا ہے، وہ تھانے میں پولیس پکڑ کے اس کو پہنچتی نہیں، فون پہلے آ جاتے۔ بلکہ کئی تو ایسے ہیں جرم کیے ہے، پولیس نے اس کو گرفتار کیے ہے، بڑے آفیسر کو پتا چلا ہے، وہ اپنی گاڑی پہ بٹھا کے اس کو اس کے گھر میں چھوڑ کے آیا ہے کہ تمہیں پتا نہیں یہ کون سا لڑکا ہے جس کو تم پکڑ کے لے آئے ہو۔ اگر وہی جرم کسی غریب کے بچے نے کر لیا ہے، مار مار کے اس کی تباہی مچا دی جاتی۔ یہ بے انصافی پاکستان میں آئی ہے تو عمل کہاں سے آئے؟ عمل تو وہاں آتا ہے جہاں انصاف ہو۔ یہی تو وجہ ہے اللہ رب العزت نے تو مسلمانوں کو کہا ہے، مسلمان جیسے جیسے ایمان میں بڑھتے جاتے ہیں اللہ عزت میں بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ صرف ایک مدینہ ہی تھا، مدینہ تھا، مدینے سے انصاف نکلا ہے، مدینے سے حکومت نکلی ہے، آدھی دنیا تک مسلمانوں کی حکومت آ گئی تھی، صرف ایک شہر سے نکلے تھے۔ اور ہمارے پاکستان کی کیفیت تمہارے سامنے، آزاد ہوئے، بنگلہ دیش علیحدہ ہو گئے، اب اور کیا بڑھنے، اور کیا بڑھنے ہے؟ آج تک ہم کشمیر کا مسئلہ حل نہ کروا سکے، کیا وجہ ہے؟ بے انصافی ہے، انصاف نہیں ہے، اس لیے پاکستان ذلت اور رسوائی کا سبب بن چکا ہے۔ یہ پاکستان صرف یہ 4 صوبے نہیں، وہ اس پاکستان کے اندر انڈیا کو بھی شامل ہم نے کرنا تھا، اس کے اندر امریکہ کو بھی شامل کرنا تھا، باقی تمام ملکوں کو اس کے ساتھ ملاتے چلے جانا تھا، لیکن آج پاکستان خود خطرے میں آ چکا ہے۔ کیا وجہ؟ انصاف نہیں ہے۔ وہ باؤنڈری کیوں بڑی تھی مدینے کی؟ انصاف تھا۔ ان کو تو حکمران ایسے ملے تھے، ایسے حکمران، ایسا انصاف کرنے والے۔ اللہ کی قسم، امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، حج کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں اور کھلی کچہری لگائی ہے۔ ایک آدمی عمرے کے لیے، حج کے لیے آیا ہے، وہ مکے کی گلیوں میں دعائی دیتا ہے، واہ اسلام، ہائے اسلام کدھر گیا؟ این العدل، مجھے انصاف کہاں سے ملے گا؟ ایک آدمی کے کان میں آواز پڑی، کہا کہاں سے آئے ہیں؟ کہا مصر سے آیا ہوں۔ کہا کیا چاہتا ہے؟ کہا مجھ سے ظلم ہوئے ہے، بتاؤ مجھے انصاف کہاں سے ملے گا؟ کہا ادھر تو انصاف ہی انصاف ہے۔ کہا کہاں سے ملے گا؟ کہا امیر المومنین نے کھلی کچہری لگائی ہے، جاؤ، چلے جاؤ ادھر۔ وہ آدمی بھاگا ہوا، امیر المومنین کو لوگوں نے گھیرا ہوا تھا، اور کیا کہتا ہے؟ این العدل، او انصاف کہاں ہے؟ مجھے کہاں سے انصاف ملے گا؟ امیر المومنین کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی، یہ انصاف مانگنے والا کون ہے؟ اس کو قریب لایا جائے۔ اس کو قریب لایا گیا ہے، کہا امیر المومنین مجھ پہ تیرے گورنر کے بیٹے نے ظلم کیا ہے، مجھے انصاف دلا کر دو۔ امیر المومنین بھی مسلمانوں کا حکمران تھا، کیس لگائے، ہماری بھی عدالتیں ہیں، ہماری بھی عدالتیں ہیں، ذرا اس کا بھی نقشہ اپنے سامنے رکھو۔ پشتوں کی پشتیں مر جاتی ہیں، کیس نہیں ختم ہوتا، انصاف کہاں سے ملے گا؟ کسی نے سچ کہا ہے کہ ہماری عدالتوں سے انصاف لینا چاہتے ہو، قارون کی دولت ہونی چاہیے، نوح علیہ السلام کی عمر ہونی چاہیے، اور ایوب جیسا صبر ہونا چاہیے۔ یہ تو ہماری عدالتوں کی کیفیت ہے۔ آؤ مسلمانوں کی عدالت کا ذرا نقشہ تو دیکھو۔ امیر المومنین نے کہا کیا بات ہے؟ کہا آپ کے گورنر عمر بن عاص کے بیٹے نے میری پشت پہ درے مارے ہیں، درے مارے ہیں، ظلم کیے ہیں۔ کہا تو نے اس کو درے مارے ہو گے؟ کہا امیر المومنین میں نے اس کو کوئی درہ نہیں مارا۔ کہا تیرا جرم کیا تھا؟ جرم یہی تھا، اس عمر بن عاص کے بیٹے نے مجھ سے گھوڑا دوڑ لگائی ہے، میرا گھوڑا آگے نکل گیا ہے،
घोड़ दौड़ के अंदर मैं जीता हूं, मेरा यही जुर्म है, उसने मुझे पकड़ा है, मुझे मारना शुरू किए है। कहा तुझे पता नहीं मैं गवर्नर का बेटा हूं, तुम मुझसे आगे क्यों निकले? अमीरुल मोमिनीन का जिस्म गुस्से से कांप उठा है। अपने सिपाही को भेजा, सलार को भेजा, जाओ दस्ता लेके जाओ, अमर बिन आस के बेटे को गिरफ्तार करके लाओ। निकले हैं, पलटते हुए आवाज दी, कहा ठहर जाओ, उसके बेटे को नहीं लाना, उसके बाप को भी पकड़ के लाओ, अमर बिन आस को भी गिरफ्तार करके लाओ। पकड़ के लाया गया है। अमीरुल मोमिनीन ने कहा किधर है अमर बिन आस का बेटा? लाया गया है। कहा किधर है मिस्र का बासी? कहा मैं हूं अमीरुल मोमिनीन। कहा जिस तरह इसने तेरी पुष्ट पे दुर्रे मारे हैं, आज लोगों के सामने तू इसकी पुष्ट पे दुर्रे मार। दुर्रे मार रहे? कहा अब इससे पूछ तू किसका बेटा है, किस इज्जत वाले का बेटा है? जिस तरह ये तुझे ताना देता था, आज इसकी पिटाई कर। जिस तरह तुझे कोड़े लगाए हैं, इसको भी कोड़े लगा। कोड़े लग गए। जब इंसाफ मिल चुका है, उमरे फारूक गुस्से में आ चुके हैं। कहा अमर बिन आस किधर है? कहा अमीरुल मोमिनीन मेरे बेटे की गलती है, मेरा कोई कसूर नहीं है। अमीरुल मोमिनीन ने कहा उधर खड़े हो जाओ, तेरे बेटे को ये जुर्रत हुई है तो तेरी वजह से हुई है, तेरी वजह से हुई है। कहा जिस तरह तूने इसके बेटे को मारा है, इसके बाप को भी मारो। उसने रोते हुए कोड़ा फेंक दिया। कहा अमीरुल मोमिनीन मुझे तेरे इंसाफ से हया आती है, मैंने इसको माफ कर दी है। ऐसे हुक्मरान हो, फिर अमन आता है, फिर बाउंड्रियां बढ़ती हैं, फिर मुल्क के बॉर्डर बढ़ते चले जाते हैं, मुल्कों के मुल्क, इलाके के इलाके फतह होते चले जाते हैं। यही अमीरुल मोमिनीन है ना, जिनके दौर के अंदर आधी दुनिया तक इस्लाम का झंडा लहरा दिया था। क्यों लहराया था? वजह यही थी, न दिन को चैन आता है न रात को। सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान कहते हैं दोपहर का वक्त है और मैं घर के अंदर लेटा हुआ हूं, सारे परिंदे भी आराम कर रहे हैं, गर्मी की शिद्दत है। मैंने एकदम एक आदमी को देखा, उसने सिर्फ नीचे कपड़ा एजार बंद बांधा हुआ है, हाथ में छड़ी है और भागता चला जा रहा है, भागता जा रहा है। मेरे दिल में ख्याल आया कि ये पता नहीं देहाती कौन सा आदमी है, इनको दोपहर के वक्त भी सुकून नहीं आता, इतनी गर्मी की शिद्दत है, लोग आराम कर रहे हैं, घरों के अंदर परिंदे भी अपने घोंसलों के अंदर आराम कर रहे हैं, और ये देहाती इतनी गर्मी में सिर्फ नीचे इजार बंद बांधे भागा जा रहा है। मैं अजीब सी कैफियत सोच रहा था। अचानक थोड़ी देर बाद वो आदमी देखा मैं दूर से वापस आ रहा है। मैं जल्दी से बाहर निकला कि मैं देखूं तो सही है कौन। जब बाहर निकला, मेरे करीब आया, तो वो आधी दुनिया का हुक्मरान तनहा अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब थे। कहा ये कैफियत देख के मुझे रोना आ गया। मैंने कहा अमीरुल मोमिनीन दोपहर के वक्त तो परिंदे भी घोंसलों में आराम कर रहे हैं और आप धूप की गर्मी में कैसे फिर रहे? कहा उस्मान तू घर के अंदर आराम कर सकता है, तेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है ना। मैंने अपनी सारी रियाया का हिसाब देना है। बैतुल माल में से एक ऊंट भाग गया था, मैं उसकी तलाश के लिए निकला था। अगर वो आज मेरे हाथ ना आता, ए उस्मान, उसका क़यामत वाले दिन जवाब तूने नहीं देना था, मैंने देना था। अल्लाह की अदालत में मुझसे पूछा जाना था, बैतुल माल का एक ऊंट गायब हुआ तो किधर गए? ये अमीरुल मोमिनीन है। ऐसे इंसाफ करने वाले लोग हों तो फिर दुनिया के अंदर अमन आता है। हमारे हुक्मरानों को आराम के सिवा कुछ नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यही अमीरुल मोमिनीन है। इनको रात को भी नींद नहीं आया करती थी, दिन को लोगों के दरमियान फैसले करते और रात को सोते नहीं थे, करवटें बदलते बदलते उठते और मदीने की चौकीदारी शुरू कर देते थे। एक दफा अपने गुलाम असलम को साथ लिए, कहा यार काफी दिनों से ये झोंपड़ियों वाले लोग आए हैं, इनका भी पता लेना कैसे रह रहे हैं। जिस तरह आप जानते हैं झोंपड़ियों वाले लोग आते जाते रहते हैं। कहा असलम गुलाम बयान करता है अल-बिदाया व निहाया में हाफिज इब्न कसीर अलैहि रहमत जैसे मुअर्रिख ने लिखा है, कहा हम जब उनकी तरफ गए,
अचानक एक झोंपड़ी के पास से जब हमारा गुजर हुआ, हमने देखा उस झोंपड़ी के अंदर चंद बच्चे हैं जो जारो की तार रो रहे हैं, चूल्हा जल रहे, उसके ऊपर हंडिया है और बच्चे रो रहे हैं। मां उनको तसल्ली देती है, चुप करवाने की कोशिश करती है, लेकिन वो खामोश नहीं हो रहे। अमीरुल मोमिनीन ने करीब जाके पूछा, बीबी ये बच्चे क्यों रो रहे हैं, इनके रोने की क्या वजह है? कहा भाई जाओ अपना काम करो, हमको हमारी हालत में छोड़ दो। अमीरुल मोमिनीन पूछते हैं, मुझे बताओ तो सही, हो सकता है मैं आपकी परेशानी हल कर दूं। कहा भाई सीधी सादी बात है, हमारे अमीरुल मोमिनीन को हमारी कोई फिक्र नहीं है, कोई फिक्र नहीं हमारी रखता, वो अमीरुल मोमिनीन के काबिल नहीं है। कहा क्या बात है? कहा मेरे बच्चे भूखे हैं, सारा दिन भूख बर्दाश्त करते रहे हैं, लेकिन रात को इनसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही कि मैंने आग पे पानी रखा हुआ है, इसके अंदर पत्थर है, मैं अपने बच्चों को दिलासा देती हूं ये खाना तैयार हो रहा है, लेकिन खाना है नहीं, भूख की वजह से इनको नींद नहीं आ रही। अमीरुल मोमिनीन जारों की तार रोना शुरू कर देते, कहते हैं बुढ़िया आपने अमीरुल मोमिनीन को बताना था। कहा अमीरुल मोमिनीन को खुद पूछना चाहिए था या हमने बताना था? अमीरुल मोमिनीन रोते हुए वापस पलटे, असलम गुलाम साथ है, आधी दुनिया का हुक्मरान है, उसकी कैफियत देखो, फटे पुराने कपड़े हैं, बैतुल माल में पहुंचे। कहा असलम इधर से एक बोरिया उठाओ मेरे कंधे पे रखो। कहा अमीरुल मोमिनीन गुलाम हाजिर है। कहा नहीं, दुनिया के अंदर मेरा बोझ तो कई उठाने वाले हैं, लेकिन क़यामत वाले दिन मेरा बोझ कोई नहीं उठाएगा। वला तज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उख़रा। अमीरुल मोमिनीन ने रोते हुए इसरार किया है, ए असलम मेरी कमर पे बोरिया को रखो। बोरिया को रखा गया है, साथ शहद ले लिए, उस चौपड़ी में पहुंचे और अमीरुल मोमिनीन ने खुद हंडिया के अंदर हलवा तैयार किया, खुद आग जला रहे हैं, हंडिया तैयार हुई है, हलवा तैयार हुआ है, बच्चों को पेश कर दिए। असलम ने कहा कि अब हमारा काम पूरा हो गया, चले? कहा नहीं नहीं, अब मैं नहीं जाऊंगा, अभी तक जिन बच्चों को मैंने रोता हुआ देखा है ना, जब तक मैं इनको हंसते हुए नहीं देखूंगा मैं वापस नहीं जाऊंगा। वो बुढ़िया रो पड़ी, उसने कहा ए अल्लाह के नेक बंदे अमीरुल मोमिनीन तुझे होना चाहिए था, उमर इस काबिल नहीं है, तुझे होना चाहिए था। ये थे वो लोग जिनके दिन के कारनामे ये हैं, न दिन को चैन आता है न रात को चैन आता है। यही वजह है तन तन आजान होती थी और दूर दूर के लोग उनसे डरा करते थे, कांपा करते थे। ऐसे इंसाफ पसंद थे। बातें तो बहुत हैं, मैं इख्तिसार करता हूं। एक दफा